Hello, my ICSC Class 9 students. Here I am with yet another chapter of your biology syllabus, the digestive system. So, before I start with this chapter, all I want you to know is that this is a very important chapter, and once you start with this chapter, it's my humble request to please revise all over again. Maybe just give 5 or 10 minutes to this chapter. Okay, so I am emphasizing you that please revise and all that just because of the reason that I don't want you to forget things, because this chapter contains a lot of details, a lot of content which can be asked in objective type questions, or in long answer questions, short answer questions, and whatever questions come in exams. So of course, pictures from this chapter can also come, and around that picture you can be asked many questions. So please pay attention to every minute detail given in this chapter so that you don't miss out any point. And also, side by side, start making your flowcharts, notes, which would be really very helpful when you sit and revise before your exams, because as you know, you don't have any much time for revision left before your exam time. So it would be easier if you just revise from the flowcharts, and your flowcharts will contain the most important details of this chapter. So I'll be helping you with that. Okay, so let us start with the first topic of the digestive system. Now I am following the Selena version. If your school follows some other version, other book, content remains the same, but since most of the schools follow this book, I'll be just reading and explaining from this. Otherwise the content remains the same. The food that we eat cannot be utilized as such in the body. It must be changed into soluble, absorbable form to get absorbed by blood. Certain foods like sugar, cane sugar, are already soluble in water, but they require breaking down of molecules into smaller units so that they could pass through the cell membranes of the wall of the gut. Now, whenever you eat something, right? Whenever you eat something, it has to be broken down into smaller and finer substances so that it can be it could pass through the walls of your gut, of your digestive system. Just imagine कि आपने एक you had a full one bite of your rice and dal or whatever, and वो ऐसे ही चली गई, तो it will be very difficult for your gut to absorb all the nutrients, right, and to remove all the waste from it. तो digestive system का काम जो होता है वो होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करना, एंड जब तक आपका फूड सिंपलर सब्सटेंसेस, फाइनर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन नहीं होगा, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से कर लेगा. डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ योर ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरली अकरिंग फूड स्टफ्स इन डिफ्यूजिबल form, or there's another definition giving that any change which makes the food soluble of such chemical nature that they can be absorbed through the living membrane, right? तो डाइजेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और सिंपल वर्जन बताऊँ तो बस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस या जो आप फूड स्टफ खा रहे हो इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म या फिर फाइनर सब्सटेंसेस, राइट? सो दिस डेफिनेशन हैज़ टू बी लर्नड. This definition has to be learned by you. You can note it down somewhere or just mark it in your book, right? मैं यहाँ पे सिर्फ मार्किंग करते हुए चलूँगी, and I'll tell you कि कैसे आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो. Now it's your job to make your flow charts and mark points in your book कि आपको वो क्वेश्चन आंसर में मदद करेगा and all that. So digestion की definition is important. First paragraph is just an introductory paragraph, and digestion
कि जो डेफिनेशन है दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो वहाँ पे, बट दोनों पता होनी चाहिए. आई वुड सजेस्ट यू दैट. ओके ओके. नाउ एंजाइम्स होते क्या हैं? नाउ दिस ग्रीन बॉक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंजाइम्स प्ले अ की रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड टेकन इन. जो भी फूड हम अंदर ले रहे हैं, एंजाइम्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स इन एडिशन टू दोज इन्वॉल्व इन डाइजेशन. और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती, कैरेक्टरिस्टिक्स जो फंक्शंस भी उसमें इंक्लूड होंगे. इट इज़ अ प्रोटीन एंड देयरफॉर डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग. ये एक प्रोटीन होता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन. एंजाइम जो होते हैं वो काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं एंड देयरफॉर डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग. It acts only on one kind of substance called the substrate. Always forms the same end product from the substrate, only affects the rate of chemical reaction. Like a catalyst, it can be used and again. आप ये नहीं बोलते हो या पेट आपका ये नहीं बोलता कि एंजाइम ख़त्म हो गया, न्यू एंजाइम का वो करो, फिर न्यू एंजाइम आएगा. नो, वो चीज़ यूज़ हो सकती है अगेन एंड अगेन. ऑलवेज वो एक ही एंड प्रोडक्ट बनाएगा. Acts on only one kind of substance called the substrate. Okay, like a catalyst, can be used again and again. Acts best only at a particular pH और acidity. आपकी जो gut है उसमें एक particular acidic nature होता है. अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा एसिडिक खा लेते हो कुछ ऐसा, तो आपको थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है. बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग ज़्यादा एसिडिक नहीं खाना चाहिए. तो एक पर्टिकुलर एसिडिक नेचर ही हमारा वो गट जो है वो टॉलरेट कर पाता है. तो इट वर्क्स बेस्ट एट अ पर्टिकुलर पीएच. राइट, एक पर्टिकुलर पीएच पे वो वर्क करेगा, अदरवाइज आपको बहुत से गट प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यू कैन लर्न एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. You should know what do you mean by enzymes, right? एक और है acts best within a narrow temperature range, which is also called the optimum temperature. तो you can be asked कि optimum temperature क्या होता है जहाँ enzymes work करते हैं. It's 35 to 40 degree Celsius. ठीक है. So this was the introduction. जहाँ हम main जो आते हैं digestive system पे, that is digestive system. If I tell you जो digestive system होता है, it consists of two. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो चीज़ें कंटेन करता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सो यू विल मेक टू एरोज. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंटेन करता है? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. राइट. एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर ट्यूब होता है, फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस. ओके, तो बहुत बड़ी सी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, मतलब 9 मीटर्स. कैन यू जस्ट इमेजिन कि कोई ऐसी चीज़ हो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर्स की हो. वो आप मेजर करिए, रूलर से भी आते हैं, आप मेजर करिए एंड यू सी कि 9 मीटर्स कैसे कितना बड़ा हो सकता है. तो एलिमेंट्री कैनाल इज़ एक्चुअली वेरी लॉन्ग एंड इज़ हाईली कॉइल्ड, स्पेशली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बहुत कॉइल होगा. आपने कॉइल देखा होगा, वो स्ट्रक्चर का होता है, राउंड. ओके, नाउ आर डिफरेंट बोथ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इन एडिशन टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लोकेटेड, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे. 2 large digestive glands. You should know कि 2 large digestive glands क्या होते हैं, and they are liver and pancreas. Liver and pancreas. Right. Liver and pancreas are also associated with 3 different salivary glands are associated with mouth cavity. तो माउथ कैविटी के साथ 3 डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं हमारे पास. जब तक मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं हुए तो सलाइवा कौन प्रोड्यूस करेगा? एक्चुअली तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रही हैं सलाइवा आपका. एंड सलाइवा इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अदरवाइज आपका जो माउथ है बहुत ड्राई हो जाएगा एंड यू विल ऑलवेज फील वेरी थर्स्टी. हर 1 मिनट में पानी चाहिए होगा फिर, इफ़ सलाइवा प्रोडक्शन ही नहीं होगा सलाइवा का.
तो अभी जो मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. एलिमेंट्री ग्लैंड मस्कुलर ट्यूब होता है विच स्टार्ट्स विद द माउथ एंड्स एट द एनस, 9 मीटर लॉन्ग होता है. हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, 2 लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में होते हैं उसमें उसी के अंदर आते हैं. राइट, जब भी मैं कुछ पढ़ा दूँ वीडियो को स्टॉप करना, आंखें बंद करके जस्ट रिवाइज कि मैंने क्या बताया. अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के 2 होते हैं हमारे, डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल. जस्ट रिवाइज. राइट, उससे क्या होगा, यू विल नो कि आपको कितना समझ में आया. नहीं समझ में आया, अगेन वापस जाइए, रीडिंग करिए, यू विल. राइट, अब हम लोग आते हैं द माउथ. हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से शुरू होता है एंड एंड्स एट the anus. Right, so mouth जो होता है, mouth cavity is a space where the food is chewed and mixed with saliva. तो mouth वो होता है जहाँ पे फूड हम च्यू करते हैं, वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है. जो फ्रंट लिमिट्स होती हैं दे आर फॉर्म बाय अपर एंड द लोअर लिप्स. इम्पॉर्टेंट. तो जो हमारा जो फ्रंट होती हैं लिमिट्स, वो अपर एंड लोअर लिप्स होती हैं. लिप्स का भी ये बहुत फंक्शंस हैं, यू शुड नो कि लिप्स के क्या फंक्शन होते हैं. सकिंग एंड सिपिंग लिक्विड, स्पीकिंग, परसीविंग सर्टन सेंसेशंस, टच, हीट. राइट, अब मस्कुलर टंग्स, अब टंग के भी बहुत सारे वो दिए हुए हैं आपको फंक्शंस. मैनिपुलेटिंग द फूड वाइल च्यूइंग एंड मिक्सिंग, क्लीनिंग द फूड पार्टिकल्स, स्पीकिंग, टेस्टिंग. दिस इज़ वेरी जनरल कि वहाँ पर यूजली ये क्वेश्चन नहीं आते बिकॉज दिस इज़ वेरी जनरल कि लिप्स के या टंग के क्या फंक्शन होते हैं, बट यू शुड नो. तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, वेरी जनरल कि क्या होते हैं फंक्शंस. राइट, ओके, सो आई होप कैन यू सी दिस डायग्राम. दिस डायग्राम शोज द एलिमेंट्री कैनाल. माउथ से शुरू होती है and it ends at the anus. Can you see? This is your mouth. तो ये माउथ से शुरू होती है and it ends at the anus. तो इतनी बड़ी होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल. Now if we move to this diagram, ये एक this diagram shows different kinds of teeth. ठीक है, in नेचुरल पोजिशन जो आपके जॉ में जैसे वो प्लेस्ड होते हैं उसी तरह इसको शो किया गया है. सो यू हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ. 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं आपके. एक होता है इंसाइजर्स, एक होता है कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. राइट, ओके. सो इंसाइजर्स जो हमारे फ्रंट 4 टीथ होते हैं, 4 जो हमारे आगे के 4 होते हैं इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ, वो उसको हम इंसाइजर्स बोलते हैं. इनका फंक्शन पता होना चाहिए. देयर कटिंग एजेस आर ब्रॉड एंड शार्प लाइक अ चिजल. दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग. सो विच काइंड ऑफ टीथ इज यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? इट्स योर इंसाइजर्स. राइट, इंसाइजर्स वो हमारे टीथ होते हैं, आगे के 4 टीथ वो होते हैं जो बाइटिंग एंड कटिंग में हमारे मदद करते हैं. कैनाइन्स नेक्स्ट जो हमारा आता है, जो नेक्स्ट टीथ आता है हमारा, जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ योर कैनाइन्स. ठीक है, कैनाइन्स जो हमारा होता है वो वन ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर्स. जो हमारे इंसाइजर्स होते हैं उसके आइदर साइड पे होते हैं. दे आर कॉनिकल, ऐसा आप शेप में देख सकते हो. दे आर कॉनिकल एंड शार्पली पॉइंटेड. दे यू यूज फॉर होल्डिंग एंड टीयरिंग द फूड. जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं लाइक टाइगर, लायन, जब वो किसी के मीट का फ्लैश जो खाते हैं वो ये टीथ उनको किस में मदद करते हैं? टीयरिंग दी फ्लैश. ओके, योर थर्ड टाइप, जो थर्ड टाइप के होते हैं आर योर प्रीमोलर्स. ठीक है, जो थर्ड टाइप के हमारे होते हैं वो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं. दे आर 2 ऑन ईच साइड इन ईच जॉ. ठीक है, जो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं दे आर 2 ऑन ईच साइड इन ईच जॉ. ठीक है, ईच प्रीमोलर
at is a two hill like projections or cusps on its surface, hence known as bicuspid. So you should know कि premolars को हम bicuspid क्यों कहते हैं. You should know this. Premolars help in grinding and crushing the food. तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड में ये मदद करते हैं. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ये जो बाइकस्पिड है कि बाइकस्पिड क्यों कहा है इनको प्रीमोलर्स को. एंड प्रीमोलर्स हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड, राइट. अब जो हमारा होता है नेक्स्ट कम्स योर जो नेक्स्ट होते हैं हमारे मोलर्स होते हैं. दे आर लास्ट 3 टीथ ऑन ईच साइड. ठीक है, तो दे आर लास्ट 3 टीथ इन ऑन ईच साइड इन ईच जॉ. दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया. आप देख सकते हैं ज़्यादा सरफेस जो इनका एरिया जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, सो द लास्ट मोलर इन ईच साइड इसको हम बोलते हैं. तो लास्ट मोलर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टूथ. ठीक है, जो दो लास्ट मोलर होता है ऑन ईच साइड उसको हम विजडम टूथ बोलते हैं. वो कब आता है, व्हेन यू आर 17 to 20 ईयर्स के बीच में वो तब आता है. In this manner, the human or mammalian teeth are different in shape and are known as heterodont. Hetero मतलब different, बोलते हैं ना हम लोग hetero. hetero मतलब different. Homo is same, hetero is different, and don't is your teeth. ठीक है, इसमें दिया जैसे lizard frog के homodont होते हैं, सिमिलर टीथ होते हैं. बट हेट्रोडोंट के जो मैमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनके हेट्रोडोंट होते हैं. सो इफ़ यू आर आस्क्ड कि डू ऑल मैमल्स हैव हेट्रोडोंट, तो यू विल राइट ट्रू. येस, दे हैव हेट्रोडोंट, मतलब दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. ठीक है, बट अगर लिजर्ड फ्रॉग की बात की जाए तो वो होमोडोंट में आते हैं क्योंकि उनके सिमिलर टीथ होते हैं. This you can read this box. Okay, mammalian teeth appear in 2 sets. आपको पता है 2 सेट में हमारे mammalian teeth आते हैं. एक होता है हमारे मिल्क टीथ, हम जब 7 to 8 months ओल्ड होते हैं, दे आर completed. ठीक है, सो मिल्क टीथ इन ह्यूमन्स फर्स्ट सेट या मिल्क टीथ कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ, राइट. तो जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे 20 होते हैं. मिल्क टीथ हमारे 20 होते हैं. विच स्टार्ट्स गोइंग थ्रू द गम्स व्हेन चाइल्ड इज 7 to 8 months. जब 7 to 8 months में होते हैं एक चाइल्ड, एक इन्फेंट, तो उसके मिल्क टीथ आना शुरू हो जाते हैं, राइट. ओके, सो जब एक चाइल्ड 7 to 8 months ओल्ड होता है तब उसके मिल्क टीथ आना शुरू हो जाते हैं एंड दे आर 20 इन नंबर. ठीक है, दीज आर टेम्पररी, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ होते हैं. दे फॉल आउट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रूट्स बीइंग डिसॉल्व्ड. ओके, एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ. एंड बाय नाउ एज क्लास 9 स्टूडेंट्स, आई नो कि तुम लोग के परमानेंट टीथ एंड यू ऑल्सो नो कि परमानेंट टीथ आ गए हैं. अब उसके बाद अभी कोई मिल्क टीथ नहीं है किसी के भी उसमें माउथ में, जॉ में, एंड यू ऑल हैव परमानेंट टीथ. ओके, yes, so everyone knows this. Now structure of a tooth. Now this is again very important. हमें 2 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. सो पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि ये जो ए आप देख रहे हो, दिस इज़ योर इंसाइजर कैनाइन, किसी का भी ले सकते हो, एंड बी इज़ योर प्रीमोलर. ठीक है, याद रखना प्रीमोलर्स में यू हैव 2 रूट्स. ठीक है, प्रीमोलर्स में यू हैव 2 रूट्स. तो इसका डायग्राम कम्स, मतलब ये तो ज़रूरी है कि वो आता ही आता है. तो डायग्राम तो इसका इज़ इम्पॉर्टेंट. डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट. तो डायग्राम तो आता ही आता है एंड यू शुड लर्न दिस. ओके, एंड साथ ही साथ आपको इतना भी पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में क्या आता है. ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ अ क्राउन और द पार्ट एक्सपोज अबव द गम. जो गम के ऊपर जो हमें पार्ट विजिबल है दैट इज़ योर क्राउन एरिया, और जो अंदर होता है दैट इज़ योर रूट. ठीक है, तो क्राउन और रूट, ये देखिए आप, रूट एंड दिस इज़ योर क्राउन, राइट, जो हमें दिख रहा है. देन
The root consists of single process of fang as in incisors or canines or of two processes of fangs in the premolars. ठीक है, तो जो root है वो एक single process, I told you कि single है, तो ये यूजली आपके कैनाइन्स या इंसाइजर्स में होते हैं. प्रीमोलर्स में यू हैव टू फैंग्स, राइट. देन the neck is a slight constriction between the root and the crown. A tooth shows the following parts. You have an enamel. जब भी आप कोई पार्ट पढ़ो, प्लीज़ रेफर टू द डायग्राम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और डायग्राम देख के आपको समझ में आता है. एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स तो आपको वो चीज़ याद आने लगती है. एंड ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट. So enamel ivory material होता है which covers the crown, hardest substance of the body. Name the hardest substance of the body. वो होता है हमारा enamel. What is it? Enamel, hardest substance of the body. See, this is your enamel. Enamel, right? Hardest substance जो crown को cover करता है. Then your dentine. Dentine forms a bulk of tooth harder than the bone but not as much hard as your enamel. Has minute canals through which runs the strands of cytoplasm of the cells in pulp cavity. Pulp cavity में cytoplasm होता है हमारा. See, this is the pulp cavity. तो इसमें हमारा cytoplasm होता है. and जो dentine होता है उसके अंदर होता है minute canals होता है हमारे dentine के अंदर. See, this is your dentine. If I clear this picture, दिस इज़ योर डेंटाइन. ये डेंटाइन है और पल्प कैविटी हमारी ये इसके अंदर आती पल्प कैविटी. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ. एंड दिस इज़ योर एंड अदर पार्ट द सीमेंट, अनदर बोन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग एंड फिक्सिंग द रूट इन पोजिशन. तो सीमेंट ये होता है हमारा जो रूट को पोजिशन में रखता है. यू हैव योर पल्प इज़ अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्ड इन द सेंट्रल स्पेस. इसमें आपके ब्लड कैपरीज आते हैं, विलिम फेसल्स आते हैं, नर्व फाइबर्स आते हैं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है. हमने एक टूथ का देखा, प्रीमोलर का देखा, एक हमने इंसाइजर कैनाल दोनों के सेम होते हैं तो वो देखा हमने. एंड हमने डिफरेंट पार्ट्स पर डेंटाइन क्या होता है, क्राउन क्या होता है, रूट क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, पल्प क्या होता है. यू शुड नो दिस अलॉन्ग विद द लोकेशन एंड द फंक्शन. एंड डायग्राम में कहाँ आता है, यूजली ऐसा कभी कभी आ जाता है कि एक टूथ का आपको स्ट्रक्चर दिया जाए एंड यू आर आस्क्ड टू लेबल इट्स पार्ट्स, राइट, फंक्शन ऑफ दिस पार्ट और दैट पार्ट. ठीक है. तो उसके लिए बनाने भी आना चाहिए, लेबल करना भी आना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो द लोकेशन फंक्शंस अबाउट दैट पार्ट. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड ये हमारा पूरा था टीथ का. हमने कहाँ से शुरू किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम से, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड योर दिस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम बात की. उसके बाद में लिप्स, टंग के बारे में बात की. हमने टीथ पे आया, हम 4 टाइप के टीथ पढ़े, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. मिल्क टीथ 20 होते हैं. देन ह्यूमन एडोलेसेंट जो 17-20 ईयर्स के बीच में उसके 28 होते हैं. एंड ह्यूमन अडल्ट के 32 हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द विजडम टीथ. ठीक है. देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ा. क्राउन क्या होता है, एनामल क्या होता है, डेंटाइन क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, पल्प क्या होता है. यू हैव अ लिटिल प्रोग्रेस चेक ओवर हियर जो आप खुद करोगे. एंड प्लीज़ ट्राई कि आप पीछे मत रेफर करो, जो भी आपने पढ़ा. जस्ट ट्राई, देखो कि आप कितने कर पा रहे हो. एंड देन चेक योर आंसर्स. अगर आपने सब सही करे दैट मीन्स जो पहले का ही जितना पार्ट आपने पढ़ा उतना आपको क्लियर है माइंड में. नाउ यू कैन मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. अभी नहीं क्लियर है, गो बैक अगैन, रीड इट, अंडरस्टैंड इट वंस अगैन, एंड ट्राई वंस अगैन. ओके. सो बहुत ईजी है. आई विल नॉट टेल यू द आंसर्स, ये आपको खुद करना. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सलाइवरी ग्लैंड्स. मैंने आपको बताया था सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. तीनों का नाम यू शुड नो एंड देयर लोकेशन. फॉर श्योर इट विल कम. पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट एंड beneath each ear. Then submandibular glands lying close to inner side of the lower jaw and sublingual glands below the tongue. ठीक है. तो ये 3 नाम हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के एंड देयर लोकेशन. ओके.
Ducts from each gland transport the secreted saliva into the mouth. Small quantities of saliva keep secreting at all times. ठीक है, जैसे टेस्टी फूड आया तो आपके मुंह में सलाइवा नहीं आता, ओ वाटरी माउथ, यू नो माई माउथ इज वाटरिंग. तो वैसी चीज़ होती है कि जो सलाइवा है यू नो वो समटाइम्स इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ यू नो sight or the smell of tasty food. How much saliva you normally produce? So you produce about 1000 to 1500 ml. ठीक है, that is enough to fill 5 to 7 empty bottles of any soft drink. That was just a fact that you learned right now. Saliva slightly acidic होता है, ठीक है, जिसमें आपको वाटर होता है, सॉल्ट होता है, म्यूकस होता है, एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज. नाउ यू शुड नो कौन सा एंजाइम सलाइवा में होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं. ओके, तो सलाइवरी अमाइलेज होता है जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं. सलाइवा में एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज. फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. मॉइस्टन्स एंड functions आपको पता होने चाहिए. Moistens and lubricates the inner lining of mouth cavity to facilitate speaking. Then moistens, lubricates food, acts as a solvent, helps food particles to stick together to form a bolus so they can be swallowed in a mass. तो हमारे जो हम फूड यू नो इनगल्फ करते हैं वो ये होता है कि बिकॉज ऑफ द सलाइवा, विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा वो एक बॉल बन जाता है, मास ऑफ बॉल बन जाता है, एंड इट बिकम्स स्लाइटली ईजी कि इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, राइट. ओके, देन डाइजेस्ट स्टार्च, इट्स जो एंजाइम होता है अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, उसको हम टाइलिन बोलते हैं. वो किसको कन्वर्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वो किसको कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज. तो स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? इट्स योर सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. वेरी इंपॉर्टेंट. सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है. क्लीन्स द माउथ, डिस्ट्रॉय जर्म्स, ड्राइनेस इन माउथ, गिव्स अ फीलिंग ऑफ थर्स्ट टू रेप्लेनिश बॉडी वाटर. सो यू शुड नो कि सलाइवरी, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स पता होने चाहिए 3 नाम सलाइवरी ग्लैंड्स के, एंड वो कहाँ प्रेजेंट हैं, अलॉन्ग विद कि कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम, दोनों नाम, और वो किसको किस में कन्वर्ट करता है. यूजली फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है. स्वॉलोइंग एंड पेरिस्टाल्सिस. जो टंग होती है वो अपवर्ड एंड बैक प्रेस करती है, एंड दिस फोर्सेस द बोलस इनटू द थ्रोट. उसकी वजह से ही यू नो जो फूड है वो हमारे थ्रोट फैरिंग्स की ओर जाता है. द बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ कैविटी क्लोजेज द ओपनिंग बिटवीन द थ्रोट एंड द नेजल पैसेज. जैसे हमारा फूड चल जाता है उस ओपनिंग को वो बंद कर देता है. द लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है, ठीक है, विच इज़ लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द विंड पाइप, इज पुल्ड अपवर्ड टू ब्रिंग इट क्लोज टू द बैक ऑफ द टंग, which is known as the epiglottis, closes its opening. Thus the only passage available to the swallowed food is that of the gullet or the esophagus. आपको पता होना चाहिए कि जो विंड पाइप होता है, राइट, उस पर एक फ्लैप होता है, इसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. तो वो क्लोज हो जाता है जब फूड अंदर आ रहा होता है, जस्ट बिकॉज कि जब फूड अंदर आए तो वो गलती से विंड पाइप में ना जाए. कभी कभी क्या होता है, गलती से हम बातें कर रहे होते हैं तो वो विंड पाइप में चला जाता है, एंड व्हाट हैपन्स अल्टीमेटली इज़ दैट कि हम कफ करने लगते हैं नो, एंड हम कोशिश करते हो फूड निकल आए उस पाइप से. सो उसी की वजह से वी से कि हमें खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यू नो अगेन फिर दूसरे पाइप में चला जाता है. एंड ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं कि इंसान की डेथ भी हो सकती है, राइट. सो वंस द फूड रीचेस द ईसोफेगस इट इज़ कंडक्टेड बिहाइंड बाय स्पेशल मूवमेंट जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं. यू शुड नो द डेफिनेशन, इट्स रियली वेरी important. Definition of peristalsis: wave of constrictions caused by circular muscles of gut pushing the food along. तो ये एक wave of constriction होती है जिसकी वजह से जो gut है वो push करता है food को. As the wave passes, peristalsis occurs through all regions of gut.
So, mucus secreted by all regions of the gut is a slimy fluid which lubricates food. So you can be asked, ki, what is secreted? Dash secreted by all regions is a fluid which lubricates the food. It is your mucus. Okay, so this is really very important. जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जस्ट रिवाइज. बहुत बहुत सी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी मिलेंगी जिसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो ट्राई फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस. जितना भी मैंने अभी समझा उसका एक बार फ्लो चार्ट फटाफट बना लो, आंखें बंद करो, रिवाइज करो, एंड इसी तरह ही यू कैन स्कोर वेरी वेल. मतलब ऐसे दिस इज़ द ट्रिक. ओके, सो बस इतनी चीज़ है कि रिवाइज करते रहो, फ्लो चार्ट्स बनाते रहो, एंड यू विल बी गुड टू गो.